محکمہ زراعت کی کھاد مافیا کے خلاف کارروائی، غیر قانونی ذخیرہ کھاد کی 650 بوریاں پکڑی گئیں، گودام سیل، کھاد کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا اندیا دے دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت نے کھاد کی مصنوعی قلت کا باعث بننے والوں کے گھیرا تنگ کر دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد شکیل اور کاٹن انسپیکٹر محمد اسلم نے خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا، غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ کھاد کی 650 بوریاں پکڑ کر گودام سیل کر دیا۔ محمد شکیل کا کہنا تھا کہ ڈیلر رجسٹر ہی نہیں تھا اور غیر قانونی طور پر کھاد ذخیرہ کر رکھی تھی۔ سونا یوریا کی 550 جبکہ ڈی اے پی کی 100 بوریاں برآمد کی گئیں۔ کھاد کی مالیت 17 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ کھاد جو ہے آج کل یوریا کا کرائسس چل رہا ہے، عام طور پر جو ہے نا اس کی تھوڑی سی سپلائی کا ایشو ہے، تو یہ جو ہم نے پکڑی ہے یہ گودام ڈکلیئرڈ نہیں تھا، ایک تو غیر قانونی طور پر اس نے سٹور کر رکھی تھی، اس میں یوریا اور ڈی اے پی کا سٹاک ملا ہے، تو اس کو ہم نے سیل کر کے وہ ہم پھر کنٹرول ریٹ پہ سیل کرواتے ہیں کاشتکاروں میں، اور دوسرا اس کے اوپر ایف آئی آر دی جاتی ہے اور بھاری جرمانے جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں ڈیلرز کو۔ محمد شکیل کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت برآمد شدہ کھاد اپنی نگرانی میں سرکاری قیمت پر فروخت کروائے گا تاکہ کاشتکاروں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، GT41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں کھادوں کی قلت، منافع خور ڈیلرز نے کمر کس لی، قیمتوں میں اضافہ، 3500 والی کھاد 5000 روپے میں ملنے لگی، کسانوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ فیصل آباد میں کھادوں کی قلت پیدا ہو گئی، منافع خور ڈیلرز نے کمر کس لی، 3500 والی کھاد 5000 میں ملنے لگی، کسانوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ ہر فصل کے لیے یوریا کھاد کی ضرورت ہے، ان حالات میں کاشتکاری شدید مشکل ہو گئی ہے، زراعت کے شعبے کو کوئی ریلیف مہیا نہیں کیا جا رہا، اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تماشا بنایا عام سرمایہ دار نے اس کھاد میں، پہلے پچھلے ایک مہینے دے وچ 5 ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ، 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਮਾਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, DAP ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਘੁੱਟ کے بیٹھا ہے۔ کسانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت گندم، کماد، چارے اور تیلدار اجناس کے لیے کھاد کی اشد ضرورت ہے، کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کر کے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ کھاد کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہر فصل میں کھاد چاہیے، اور ایک تو ریٹ اس کا بہت بڑھ رہا ہے، 3000 ہو گیا، 3500 تک چلی گئی ہے گورنمنٹ ریٹ پہ، اس کے بعد پھر بھی نہیں مل رہی، اگر ایون کہ پہلے بلیک میں ملتی ہے، بلیک میں بھی نہیں مل رہی، 4-5 ہزار تک بھی اگر ہم بوری مطلب افورڈ کریں یا لینے چاہیں تو نہیں مل رہی۔ تو یہی ہے کہ اگر کھاد تو ہماری اپنی مطلب ہے، ہم خود بناتے ہیں، جو پاکستان میں بنتی ہے، تو یہ پھر بھی نہیں ہمیں پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ رہی ہے تو وہ ساری مطلب بلیک میں آ رہی ہے۔ اب یہ سچویشن ہے کہ بلیک میں بھی نہیں مل رہی۔ کھادوں کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر پہنچ گئی، فی بیگ 1000 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں، مہنگائی، بے روزگاری، آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے وکلاء کی ہڑتال۔ فیصل آباد جہانگیر چنیوٹ بار کے وکلاء نے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وکلاء کا کہنا تھا انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار کی اپیل پر فیصل آباد بار کی ہڑتال، عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، وکلاء کی ہڑتال کے باعث سائلین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وکلاء نے آئین کی بالادستی کے لیے اقدامات، مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے اور فوری الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کی بھی ہڑتال، وکلاء نے عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا۔ سیشن سول عدالتوں میں کیسز کی سماعت نہ ہو سکی۔ سیکریٹری جنرل بار ایڈوکیٹ خالد داد رجوکا نے ہڑتال کا اعلامیہ جاری کیا۔ ہڑتالی وکلاء کی جانب سے آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی، مہنگائی اور انسانی حقوق کی بحالی کے مطالبات پیش کیے گئے۔ چنیوٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کی، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، وکلاء کی ہڑتال کے باعث عدالتی سائلین دربدر۔ صدر بار رائے منیر ظفر کا کہنا تھا حکومت قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ ڈالر کے بعد لوکل سریا بھی سستا ہونے لگا، فی ٹن قیمت میں 20,000 روپے کی کمی 2,60,000 روپے کا ہو گیا۔ تعمیراتی کاروبار میں بہتری کی امید پیدا ہونے لگی۔ ڈالر سستا ہونے کے ثمرات آنے لگے۔ آئرن مارکیٹ میں لوکل سریا 20 روپے فی کلو اور 20,000 روپے فی ٹن سستا ہو گیا۔ سریا سستا ہونے کے بعد 2,60,000 روپے ٹن ہو گیا۔ ایک ہفتے میں فی ٹن سریا 20,000 روپے سستا ہوا۔ صدر ٹمبر اور آئرن مارکیٹ مرزا محمد اشرف مغل کہتے ہیں ڈالر سستا ہونے سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں، امید ہے جلد برانڈڈ سریا بھی سستا ہوگا۔ یہ ایک ہفتے سے ماشاءاللہ الحمدللہ
कोई बेहतरी आ रही है। डॉलर काफ़ी नीचे आया है, आज भी डॉलर मेरा 297 पे 297 पे आ गया है। और इस वजह से जो हमारे लोकल सरिये हैं ना लाहौर के, ब्रांड वालों ने रेट कम नहीं किया, लोकल सरिये जो है ना वो तकरीबन 20,000 रुपया टन, यानी कि 20 रुपये पर केजी सस्ता हो गया है। नायब सदर टिम्बर आयरन मार्केट अब्बास अली कहते हैं, अभी लोकल सरिया सस्ता हुआ है। अगर डॉलर की गिरावट से ब्रांड सरिया भी सस्ता हो तो फिर तामीराती कारोबार में मजीद बेहतरी आएगी। जो हमारा डॉलर की वजह से रेट कम होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेड 60 जो है वो डॉलर से चलता है, लेकिन उसका कोई रेट अभी तक कम नहीं हुआ। वो 295 से लेकर 300 रुपये तक है, ये भी नीचे होना चाहिए। ताजरों की जानिब से डॉलर सस्ता होने से आयरन मार्केट में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, जिससे कारोबार का पहिया चलेगा। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा से ज्यादती साबित, सिटी 41 ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। तालिबा के DNA के नमूना जात फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। दूसरी जानिब अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा से मुबैना ज्यादती का मामला, ज्यादती का शिकार होने वाली तालिबा की मेडिकल रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तालिबा के साथ ज्यादती साबित, मजीद तजिए के लिए नमूना जात फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को इरसाल कर दिए गए। मुलजिम शाहजेब का DNA कल कराया जाएगा। एमफिल की तालिबा से ज्यादती करने वाले मुलजिम साजिद शाहजेब को अदालत में पेश कर दिया गया। गुलबर्ग पुलिस ने मुलजिम को इलाका मजिस्ट्रेट असद अली की अदालत में पेश किया। पुलिस की जानिब से मेडिकल के लिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। औलाद चाहिए तो किसी बच्चे की जान लो, पीर के कहने पर चचा ने अपने ही भतीजे का गला घोंट दिया। थाना सादनिलबार के इलाके में 3 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन, मकतूल सकलैन का हकीकी चचा जावेद इकबाल ही कातिल निकला। खून सफेद हो गया, चचा के हाथों भतीजा कत्ल। सादनिलबार पुलिस ने जदीद वसाइल इस्तेमाल करके केस का मुअम्मा हल कर लिया। 21 अगस्त को चक 57 से 3 साला सकलैन को अगवा किया गया। 26 अगस्त को बच्चे की लाश घर के बाहर मौजूद गटर से मिली। सकलैन के अगवा और कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। मकतूल बच्चे सकलैन का हकीकी चचा जावेद इकबाल ही भतीजे का कातिल निकला। जावेद इकबाल की इकलौती बेटी वफात पा गई थी। मुलजिम को मुबैना तौर पर पीर ने किसी बच्चे की जान लेने का कहा और बदले में मजीद औलाद होने की नवीद सुनाई। मुलजिम चचा ने भतीजे का गला घोंटकर लाश गटर में डाल दी और खुद ही बरामद करने का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीर और मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी है। कैमरामैन जुनैद अहमद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल की फैसलाबाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन उलमाए काउंसिल इलामा ताहिर महमूद अशरफी और दीगर शरीक। शुरका की जड़ावाला वाक़या की भरपूर मजम्मत, अमन के प्रचार पर जोर दिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मरकज़ जामिया उस्मानिया रज़ाबाद में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा कराम और मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा शरीक हुए। चेयरमैन उलमा कौंसिल इलामा ताहिर महमूद अशरफी ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत की। इनका कहना था कि मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत मजहबी अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इलामा ताहिर हसन बोले, मसीही बरादरी पर जुल्म किया गया। सरगोदा में मुस्लिम मसीही फसाद करवाने की कोशिश की गई, उसके ताने बाने भी जाके हिंदुस्तान से मिलते हैं। जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है। हमें जज्बात से नहीं, होश से काम लेना होगा। अगर जुर्म एक मुसलमान करता है तो सारे मुसलमान जो हैं वो मुजरिम नहीं हैं, और अगर जुर्म कोई मसीही करता है तो सारे मसीही मुजरिम नहीं हैं। तमाम अक़लियतों पर चढ़ाई कर देना, उनके घरों पर आग लगा देना और उनके घरों को सामान बाहर निकाल कर उनको आग लगा देना, ये कहां हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है? और अक़लियती हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने रात भर फसलों के अंदर गुजारी है। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज, कारी हनीफ भट्टी, कारी असमतुल्लाह माविया, मियां अरशाद मुजाहिद, मौलाना अबैदुल्लाह, साहबजादा हमजा ताहरुल हसन, मौलाना रफीक जामी, मौलाना हक नवाज खालिद शरीक हुए। मौलाना उमर वकास, मौलाना हबीबुर रहमान, ज़िलई सदर अमीनुल हक अशरफी, मौलाना जहारुल हक खालिद, मौलाना शुएब बखारी, मौलाना अबू बकर उस्मानी, मौलाना यासर अलवी, कारी यासीन रांझा, कारी सकब अली साके भी शामिल थे। इस मौका पर मसीही पेशवाओं बिशप ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर अंद्रयास रहमत और फादर खालिद रशीद आसी ने खिताब किया। इनका कहना था, उलमा कराम और मुस्लिम कम्युनिटी ने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया है। मिलकर अमन के लिए, खुशहाली के लिए
तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान में मसीही और मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो मिसाली है। हम कुरान मजीद को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम इसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। गर्मी में सायादार जगह नहीं, बदतमीजी की जाती है। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट के इंतजामात से बुजुर्ग खवातीन नाला। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इंदराज कराना कड़ा इम्तिहान बन गया। गर्मी में बैठने के लिए मुनासिब जगह नहीं, पानी मिलता है ना ही कोई और सहूलत। अमला भी बदतमीजी करता है, कई घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। बुजुर्ग खतून नाकिस इंतजामात पर बरस पड़ी। सुबह दे आए इत्थे बैठे आ, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई पौधे का इंतजाम नहीं है, कोई मतलब कि टेंट वगैरह नहीं, कुर्सियां वगैरह नहीं। परेशान बैठे बीमार है, कोई सुनता ही नहीं हमारी। पहले कोरोना हुआ और जब उस वक्त की मैं फिर रही हूँ, आज तक मुझे पैसा कोई नहीं मिला। खवातीन कहती हैं सुबह से इदारे की लाइट बंद है, हम इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अमला हमारी सुनता है ना कोई मदद करता है। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी इंदराज नहीं किया जाता। 2 घंटे हो गए काट भी लेके गया हजे तक आए ना। मेरी नौं दी लत्त टुटी हुई भी नाल आई आ, ओदा काट मोड़ता भी तेरा अंदाज होया पैसे कितों मिलने आ फिर जद उन्होंने अंदर किया ही नहीं। इंदराज ही नहीं करते काट, इदा ही बस गेड़े च ही रखते ने। हुण भी इस राही सुबह बैठे हैं असीं आन के। हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज और मुस्तहिकीन तक इमदादी रकम की बाइज्जत तरीके से फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। म्यूनिसिपल कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के लिए ख्वार। जंग में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पेंशनर्स को 14 रोज से अदायगी न हो सकी। के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के असूल के लिए दरबदर हो गए। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पेंशनर्स को 14 रोज से अदायगी न हो सकी। बुजुर्ग पेंशनर्स रकम के असूल के लिए दरखास्तें उठाए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हम म्यूनिसिपल कमेटी जंग के रिटायर्ड मुलाजम है जी, हमें पेंशन के बारे में हर माह मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब आज 14 तारीख हो चुकी है, हमें पेंशन नहीं मिल रही। महंगाई का दौर है, इलाज मुआवजा कराता है, पैसा बाजू टूटा हुआ है, पट्टी करानी है, ये भी पैसे नहीं है। अफसरों से बात करते हैं, वो कहते हैं पैसे फंड इकट्ठा हो रहा है, आप अभी देते हैं, अभी देते हैं, अभी देते हैं। तनख्वाहें दे देते हैं, सहायक अखराजात के बिल बन जाते हैं, कोटेशन बन जाते हैं, ठेकेदार के कामों की बिल, तेल के बिल अदा कर दिए जाते हैं, बिजली के बिल अदा कर, लेकिन पेंशन वालों को सौतेली मुआवजा वसूल किया जाता है। पेंशनर्स का कहना था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बावजूद उनकी पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। हम पेंशन में इजाफे की दरखास्तें लिए फिर रहे हैं मगर हुकाम सुनने को तैयार नहीं। हम बल्दिया के रिटायर्ड मुलाजम हैं। हुकूमत पंजाब ने इस साल ना जुलाई में ऐलान किया था भाई जो हाजिर सर्विस हैं जुलाई में उनको 30% एडहाक अलाउंस मिलेगा और 1 अगस्त से उनको 35% मिलेगा और जो पेंशन है उसमें 5% इजाफा होगा। फिर अब 8 अगस्त को चिट्ठी जारी हुई है, ये मेरे हाथ में है, ये ना फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी हुई है मगर हमारे ये बल्दिया के जो ऑडिट ऑफिसर हैं ये कहते हैं ये चिट्ठी हम नहीं मानते। म्यूनिसिपल कमेटी के पेंशनर्स ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी से नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। निगरान सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, बिलाल अफजल, असफर अली नासिर की जड़ावला आमद। बशीर कानून पंजाब, कमर दिलशाद, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO के हमरा मुतासरी गिरजाघरों का दौरा किया। निगरान सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, बिलाल अफजल, असफर अली नासिर की जड़ावला आमद। मशीर कानून पंजाब, कंवर दिलशाद, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO के हमरा मुतासरा गिरजाघरों का दौरा किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर कहते हैं कि मुल्क में अक़लियतों को यकसा हकूक़ हासिल हैं। आपको मालूम है कि 22 चर्चेज हैं 22, इनमें से 9 चर्च जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं और तकरीबन अगले 4 से 5 दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 चर्चेज मज़ीद जो है वो दे दिए जाएंगे और इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ द मंथ 26 से 27 सितंबर तक ऑल 22 इंशाल्लाह विल बी हैंडेड ओवर। सूबाई वज़रा की ज़ेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला ऑफिस में अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने ब्रीफिंग दी। जड़ांवाला में 9 गिरजाघरों की तामीर और तज़ीन और आइश मुकम्मल हो गई। दीगर 13 गिरजाघरों की तामीर और बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। कमिश्नर, CPO, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला और दीगर हकाम भी मौजूद थे। सूबाई वज़रा ने मुश्किल वक्त में मसीही भाइयों को तनहा न छोड़ने की यकीन दहानी करवाई। हुकूमती अहदेदारान ने तामीराती कामों पर अज़हार इत्मीनान किया। रिपोर्ट जो अंडर कंसिडरेशन है, रिपोर्ट पेश हो रही है, उस पर काम भी किया गया और आज जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे तमाम दोस्तों ने, वज़रा ने, असफर साहब ने भी सब पूरे डिटेल गुफ्तगू की है।
تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو وہ ہدایت جاری کی ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے لیٹر سپرٹ، اور وہ چند روز میں رپورٹ سامنے پیش ہو جائے گی۔ گرجا گھروں کے اطراف میں سیکیورٹی کیمرے نصب کرنے کی ہدایات۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ یونیسیف اور دیگر مقامی این جی اوز کی جانب سے مسیحی برادری میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔